फिर स्क्रीन शेयर चला गया। Okay, so today we are going to do the part 2 of our economics, class 9, and democracy. We were इकोनॉमिक्स studying नहीं about सर, this इकोनॉमिक्स is नहीं, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स। okay, civics, political science. हम लोग economics का वीडियो अपलोड कर दिया ना अभी, तो मेरे को वही economics कर रहा था मैं। तो this is part 2 of the political science ना, what is democracy, why democracy के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो we have already uploaded the first video, this is the second video। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कल, लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा कि डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी नहीं होती जब तक ट्रू सेंस में पीपल अपने लीडर लोग को इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये भी आता है कि लीडर कौन है, कौन बनेगा लीडर। अभी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड में कुछ हरकतें हुई हैं वर्ल्ड में। ठीक है, वी वांट टू सी द एपिसोड्स व्हिच हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड एंड वी वांट टू नो अबाउट देम नाउ। ओके, so these are some of the major decisions taken by the elected leaders. So Parth, read about this. In Pakistan, what happened? Okay, let me read. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. And what is a military coup? You know what is a military coup? A military coup is when the head of the army staff, okay, when the head of your military, suppose, I mean, whoever is the head of your military, of your army, whoever is the head, he takes over the government. Understands? He goes to the parliament or he goes to the house of the prime minister. He takes over the prime minister. He seizes him. He seizes his power, and he says that I am the power now. You know, these military people, they are actually powerful because they have weapons with them. Okay, so if they have weapons with them, they can easily take over anything. If you just imagine, simply आप imagine करो कि अगर सपोज कर लो हमारी मिलिट्री चाहे, दे हैव द वेपन्स एंड एवरीथिंग ना, अगर द मिलिट्री चाहे then they can come up and they can take over us anytime. They can just take control of us. तो पाकिस्तान में ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो मिलिट्री कमांडर हैं, जो वहाँ के मिलिट्री के जो हेड हैं, वो जाते हैं और वो वहां पर जाके पार्लियामेंट को पूरा सीज कर देते हैं, पार्लियामेंट को कैप्चर कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं और अपने आप को सेल्फ लीडर डिक्लेयर कर देते हैं। तो डू यू थिंक दिस इज डेमोक्रेसी? नो सर। Why? Because इसमें पीपल का चॉइस नहीं है, पीपल डजंट वांट हिम टू डू दैट। ओके, कभी कभी वो लोग उसके बाद क्या करते हैं, विद द प्रेशर दे क्रिएट फ्रॉम द वेपन्स, they even held elections. Okay, and उस elections में क्या होता है, it's because it is a election is actually it is like it's not a very free and fair election basically, because the guns are there, the power is there, they are using their muscle power, their gun power, and they are forcing the citizens to vote for them. So even if the citizen votes for them forcibly, then it is not a democracy, right? So we cannot say any country is achieving a democracy if the people are forced to cast their vote. Okay, if the people, they don't choose their representatives with their own free will, such a country can never have democracy. अगर लोग अपने मन से अपने नेता लोग को नहीं चूज करेंगे तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। ओके, so what Mr. Pervez Musharraf did in 1999, he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. माने अपने आप को ही उसने बोल दिया मैं इस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। Later he changed the designation to the president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. फिर वो क्या किया, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द प्रेसिडेंट, माने अपने आप को ही, पब्लिक का कुछ वो मतलब नहीं है। फिर उन्होंने पब्लिक से एक्सक्यूज मी सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। Then what happens after that? They have taken out a referendum. Okay, they take out a referendum. They held a referendum. Okay, in you know what is a referendum? नो सर, सर स्टिल It is a people's opinion. वो लोगों से एक तो referendum आज जस्ट खाली ओपिनियन ले लेते हैं और पीपल लोग बोल देते हैं कि हाँ आप प्रेसिडेंट बन के रहिए। ठीक है, तो वो 5 साल के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट का अपना एक्सटेंशन करा लिया। ही एक्सटेंडेड हिमसेल्फ फॉर द प्रेसिडेंटशिप। ओके, उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया। Pakistani media, human rights organization, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. Everybody knew there was a malpractice. Everybody knew there was a lot of frauds going on. ठीक है, आप ऐसे ही थोड़ी ना, because you have gun power, because you have muscle power, आप ऐसे किसी कंट्री के ऊपर सीज थोड़ा ना कर सकते, आप किसी कंट्री को टेक ओवर थोड़ा ना कर सकते। So this was not right. Understood? In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council,
which is dominated by the military officer. After passing this law, election were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan had the election, elected representatives have some powers, but the final power rested with the military officers and General Pervez Musharraf himself. इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ही चेंज कर दिए, ठीक है. व्हाट ही डिड, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया और उन्होंने बोला कि हम पार्लियामेंट में इलेक्शन कराएंगे, ठीक है. जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे उनके पास पावर होगा, बट द मेजर पावर वो अभी भी जनरल मुशर्रफ के पास में ही था, प्रेसिडेंट के पास में ही था. तो ऐसा कैसा डेमोक्रेसी, जब एक ही आदमी के पास टोटल पावर है, अंडरस्टूड, वो जो बोलेगा वही होगा. तो फिर डेमोक्रेसी क्या हुआ, खाली नाम का डेमोक्रेसी था. समझ में आ रहा बात? यस सर. चलो, यू रीड फ्रॉम हियर. Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called democracy. Should not be बहुत called. सारे रीजन है वो डेमोक्रेसी नहीं है. सबसे पहले तो जनरल परवेज मुशर्रफ को पब्लिक ने नहीं चुना, ठीक है. उसके बाद जो वोटिंग हो रही है वो ट्रू एंड फेयर वोटिंग नहीं हो रही है, उसमें बहुत सारे प्रेशराइज किए जा रहे हैं उनको वोट करने के लिए. सो ऑब्वियसली ये इलेक्शन को, इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, है ना? Yes sir. So can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really rulers. They cannot take the final decision. The power to take final decision rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. This happens in many dictatorship and monarchies. ये actually dictatorship ही हो गया, एक तरह से monarchy हो गया, राजा वाला सिस्टम हो गया. When the president Pervez Musharraf is saying that ultimately whatever you decide, whatever the parliament decides, but if Pervez Musharraf is not happy with the parliament, then he won't listen to the parliament and he can actually go against the president. He can actually go against the parliament. तो अगर एक आदमी का ही चलेगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे हुआ? ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया. लेकिन पाकिस्तान ने, बिकॉज जानते हैं बहुत सारी कंट्री ने बोला कि अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हम लोग आपको सैंक्शंस नहीं देंगे, हम लोग आपको मॉनेटरी फंड नहीं देंगे. तो परवेज मुशर्रफ ही नेवर वांटेड डेमोक्रेसी, पर दुनिया को दिखाने के लिए उसने इलेक्शन करवाए, दुनिया को दिखाने के लिए उसने पार्लियामेंट करवाई, जिससे लोगों को लगे नहीं उनके इलेक्शन हो रहे हैं, वह डेमोक्रेसी हो रही है और उसको फंड मिलता जाएगा, ठीक है, लोग उसको पैसा देंगे. इसी के लिए उसने क्या किया, एक तो ऐसा नौटंकी की, एक तो नाटक किया, और वो लेकिन सुप्रीम पावर परवेज मुशर्रफ के पास में ही था. Understood? So this is a joke. This is not a democracy. Okay, this is actually dictatorship. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. माने उनके पास इलेक्टेड बॉडी है, लेकिन मेन पावरफुल कौन है? परवेज मुशर्रफ, जो कि इलेक्टेड नहीं है. तो माने जो नॉन इलेक्टेड आदमी है, सेल्फ इलेक्टेड आदमी है, वो इलेक्टेड आदमी लोग के संग से ज्यादा पावर है. ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है. तो देखो इंडिया में प्रेसिडेंट है, ठीक है, और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, है ना. हमारा प्राइम मिनिस्टर, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हमारे यहाँ, ठीक है. तो इसी के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट से. जिसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे वही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो इलेक्टेड लोग हैं उनके पास पावर ही नहीं है, जो इलेक्टेड नहीं है वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिए हैं. तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? In a few countries, the real power was with some external power and not with the locally elected representative. This cannot be called people's rule. पहले इंडिया में क्या था? इंडिया में अंग्रेज थे, ठीक है, द ब्रिटिशर्स लोग थे, हमारे यहाँ भी डायरेक्ट पार्लियामेंट थी, उसमें भी हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, लेकिन जो चलता था वो सब ब्रिटेन का चलता था, क्वीन का चलता था, उनका पार्लियामेंट का चलता था. तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है. दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर. इससे हम लोग को डेमोक्रेसी का पहला मालूम पड़ा फीचर क्या? इन अ डेमोक्रेसी the final decision power must be rest with those elected by the people. डेमोक्रेसी का पहला रूल कि जो किसकी चलेगी बात, किसकी चलेगी बात, उन लोगों की चलेगी जिनको पब्लिक ने इलेक्ट किया है, ठीक है, जो अपने आप इलेक्ट होके नहीं आए हैं, जिनको पूरी पब्लिक ने मिलकर इलेक्ट किया है, पब्लिक का वोट जिनके पास में है, और वो लोग को अगर हम मिनिस्टर बनाते हैं तो उनका पावर चलेगा. तो पावर रेस्ट विद द पीपल, जो एक्चुअली इलेक्टेड बाय द पीपल. अंडरस्टूड? उनको ही हम पावर में समझेंगे. आज नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों है? क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है ना, वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, बकायदा इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शन जीत कर आए हैं, इसी के लिए, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी होता है कि क्या इंडिया में सारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं? सारे के सारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर है इंडिया में? चलो यहाँ, No, sir. रीड करो. No, sir. No, sir. No, sir.
In China, elections are regularly held after 5 years for election. The country's parliament called Quad. वांगुआ रेनबिन डेबियो दाहुल, ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस, माने वहां पर एक ही पार्टी है और उस पार्टी के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. Before contesting an election, a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smallest parties allied to it were allowed to contest election held 2002-03. The government is always formed by the Communist Party. कम्युनिस्ट पार्टी अपने पढ़ा था ना यूरोपियन, उसमें माने लेबर पार्टी, वो लोग अपना पार्टी बनाते हैं, अपना इलेक्शन बनाते हैं, अपना माने जो लेबर के जो लोग हैं वो लोग आते हैं। माने चाइना का सिस्टम क्या है, वहां पर एक बड़ी पार्टी है, ठीक है, वहां पर एक ठोक चाइनीज नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, सपोज करो उसमें 3000 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो मेंबर्स इलेक्शन में खड़े होते हैं वो मेंबर को भी परमिशन लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। माने अगर आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है, सीसीपी के अगर आप मेंबर नहीं है तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। माने अगर आपको कम्युनिस्ट लोग का रूल पसंद नहीं है तो आप कभी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। अगर आप इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे तो आप जीतेंगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, ये 3000 जो लोग होते हैं ना, ये लोग अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। अंडरस्टूड? दिस पीपल दे एक्चुअली चूज देयर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो कितनी सारी बात है, सपोज कर लो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं पसंद तो मैं चाइना में इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। माने अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी का वो जी हजूरी नहीं करूंगा तो मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? मेरी सोच अलग है, मुझे नहीं पसंद है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन अगर मैं चाइना में सीसीपी का मेंबर नहीं हूं तो आई कैन नेवर स्टैंड इन इलेक्शन, आई कैन नेवर कम्पीट इन एन इलेक्शन। समझ में आ रहा बात को? नहीं सर। Only those who are the members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-2003. The government is always formed by the Communist Party. हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years. अब मेक्सिको का कहानी क्या है? मेक्सिको की कहानी सुन लेते हैं, ठीक है। मेक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में, तब से उनके हर 6 इयर्स के बाद एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। The country has never been under a military or dictator's rule, but until 2000 every election was won by party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Opposite party did not contest election but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win election. माने यहाँ पर एक ही पार्टी जीत रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं PRI। कोई भी इलेक्शन में खड़ा होगा वो इनसे नहीं जीतेगा। तो इसका मतलब वो लोग भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। The PRI is known to use many dirty tricks to win election. All those who were employed in the government offices had to attend this party meeting. Teachers of the government school used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of the opposition political party except to criticize them. Sometimes the polling booth was shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their vote. माने वो लोग सारे हथकंडे कर रहे हैं कि ऑपोजिशन वोट नहीं दे पाए। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? No sir. ठीक है। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. Should we consider the election described above as example of people electing their rulers? तो यहाँ पर ये क्या डेमोक्रेसी हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है, वोट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रोसीजर सब सही है, लेकिन लोग इलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि लोग जो सही लोग है वो आ ही नहीं रहे। एक ही पार्टी जीत रही है, तो फिर काहे की डेमोक्रेसी? ठीक है, चलो यहाँ से रीड करो। No, sir. Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Approved by it. चाइना में तो बहुत ही अंधेर नगरी चल रही है। माने जो पार्टी जीत रही है वो बोल रही है हमारी पार्टी का आदमी आएगा, आप उसी में से चूज कीजिए। तो जब तुम्हारी पार्टी का आदमी आए, कोई भी आ जाए, XYZ, कोई भी दूसरा आदमी भी आ जाए, लेकिन आ तो तुम्हारी पार्टी का रहा है, तो तुम्हारी पार्टी जीतेगी, तुम्हारी पार्टी का दबदबा रहेगा। ये कौन सी बात है? ठीक है। मैक्सिको में क्या हो रहा है, वहां पर जो है एक पार्टी उसने तो दादागिरी करके रखी हुई है ना, बाहुबली बन गए वो लोग। Mexican example.
Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they have had no choice, but was no way the ruling party could be defeated. Even if the people were against it, there are not These are fair not fair elections. election. और मैक्सिको का हाल थोड़ा अलग है, वहां पर दो पार्टी तो है, लेकिन एक पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो उनको जीतना ही नहीं देती। तो ये भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। माने एक बोलने के लिए एक अलग कॉम्पिटिटर है, बोलने के लिए एक पार्टी है, पर वो पार्टी जीतेगी नहीं। ठीक है, चलो नीचे। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding election of any kind is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for the people to use this choice to remove the existing ruler. The existing ruler if they wish so. So a democracy must be based on a free, fair election where those currently in power have a fair chance of losing. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिससे रूलिंग पार्टी भी हार जाए। माने असल में आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, कि एक रूलिंग पार्टी भी अगर हार गई तो इसका मतलब यहाँ पे लोगों के पावर है। जैसे हमारे पास बीजेपी जो है वो 10 साल से रूल कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी ऐसा बोल सकती है कि अगला इलेक्शन हम जीत जाएंगे? क्या वो श्योरिटी से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हमारे इंडिया में तो रूलिंग पार्टी हार जाती है। तो अगर रूलिंग पार्टी हार गई, इसका मतलब लोगों के पास कितना पावर है, अब वो आपकी सत्ता बदल देगी। तो ये रियल सेंस है डेमोक्रेसी का। तो अगर आपको चेक करना है किसी के यहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं, आप ये देखिए कि वहां पे गवर्नमेंट कितनी बार चेंज होती है। अगर वहां पे गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है तो मतलब रियल पावर इज विद द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड नॉट विद द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? तो ये डेमोक्रेसी का सेकंड रूल है कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जो पावर में है वो हारने, ऐसा भी हो कि वो हार सके। ओके, हम लोग इसके बारे में और चैप्टर 3 में बात करेंगे, बोल रहा है यहाँ। चलो आगे। 1 person, 1 vote, 1 value. Earlier, we read about how the struggle for the democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote. अब सबसे पहली बात है कि वोट करेगा कौन, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। जो वोट करेगा कौन करेगा? एक तो एज के बाद होता है। हमारे इंडिया में तो 18 साल के बाद बच्चे वोट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री, इंडिया के अंदर बात क्या है, हम लोग जब 1947 में आजाद हुए थे, हम लोग ने अपनी लेडीज लोग को तुरंत पावर दे दिया था वोट देने का। हमारे यहाँ वुमेन जो है वो शुरुआत से वोट देती हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे विमेन को राइट नहीं है वोट देने का, जैसे सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में विमेन को राइट नहीं है वोट देने का। ठीक है, एस्टोनिया में हैज मेड सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी, वो लोग वोट नहीं दे सकते। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than of Indian Fijian. अब फिजी कंट्री में क्या है, जो फिजी का बॉर्न आदमी है, जो मैंने शुरुआत से फिजी में ही रहता था, उसका वोट का पावर ज्यादा है, और जो नॉर्मल जो दूसरे बाहर से आएंगे उनके वोट का पावर कम है। Democracy is based on fundamental principles of political equality. This gives us third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote. Each vote must have same value. डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर आदमी का एक वोट होता है, और एक वोट का एक ही वैल्यू होता है। माने एक वोट एक ही वोट के लिए काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा एक वोट 10 के बराबर है या 3 के बराबर है ना। 1 person, 1 vote, 1 वैल्यू। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। ठीक है, डेमोक्रेसी का। तो हमने पहला रूल क्या देखा था डेमोक्रेसी का, कि सबसे पहला रूल हमने यहाँ पे ये देखा कि जो पावर में आने के लिए पब्लिक का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। पब्लिक जिसको इलेक्ट करेगा वही पावर में आएगा, ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और तीसरा क्या है, 1 person, 1 vote, 1 vote, 1 वैल्यू। तीसरा सब आते हैं सर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। हाँ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ो। Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by
ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in election. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Opposition party works were urged and their meeting disrupted. मैंने ऑपोजिशन को परेशान करके रखते थे, जेल कर देते थे ऑपोजिशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा चेंज कर दिया उन्होंने कि जो रूलिंग पार्टी है वो और पावरफुल बनती जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो रूल रखे, अगर आप रूल ही चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा? अपने हिसाब से अगर आप रूल चेंज कर देंगे तो फिर चलो आगे। Public protests and demonstration against the government were declared illegal. Illegal. आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, उनके अगेंस्ट में आप क्या नाम है डेमोन्स्ट्रेशन भी निकाल नहीं सकते। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन निकालेंगे तो उसको इलीगल बोला जाएगा, ठीक है? Yes, sir. आगे। There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio was controlled by the government and gave only ruling party version. टेलीविजन में भी और रेडियो में भी खाली रूलिंग पार्टी को ही सही दिखाया जाता था, बाकी पार्टी को गलत दिखाया जाता था। उनका वर्जन कोई सुनता ही नहीं था, सब हाले से पॉलिटिकल उसको रूलिंग पार्टी को ही आगे लेकर चल रहे हैं वो लोग, ठीक है? Yes, sir. They were independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it. जो भी जर्नलिस्ट, जो भी न्यूज राइटर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलता था तो उसको वो लोग हैरेस करते थे, परेशान करते थे, ठीक है? गवर्नमेंट में इतनी ताकत हो गई कि वो कोर्ट का जजमेंट को भी मना कर दे रहे थे, मतलब उसको भी नहीं सुन रहे थे, ठीक है? जो कोर्ट का जजमेंट है उसके अगेंस्ट भी खड़े हो जा रहे थे वो, बोला जहां पर मेरी सरकार चलेगी, यहाँ पे सबूत भी मैं हूँ, अदालत भी मैं हूँ, गवाह भी मैं हूँ, कानून भी मैं ही हूँ। The example of Zimbabwe. अरे यहाँ से पढ़ो, कहाँ से पढ़ रहे हैं? यहाँ से पढ़ो। The government harassed those. The government ignored some court. यहाँ से रीड करो। The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. माने जज को भी क्या नाम है उन्होंने निकाल दिया, जज जो उसके अगेंस्ट में उसको दिया उसको भी निकाल दिया। चलो आगे। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments cannot be undemocratic. Can be undemocratic. बोल रहा है ये जो सरकार है, इसने जिम्बाब्वे को आजादी दिलाई, ठीक है? आजादी के टाइम पे यही पार्टी थी जो सबसे आगे लड़ी जिम्बाब्वे के लिए, लेकिन अब ये जिम्बाब्वे को खुद ही ये लोग जिम्बाब्वे को परेशान कर रहे हैं, माने खुद भी वही काम कर रहे हैं जो आजादी से पहले लोग कर रहे थे। तो ये पॉपुलर गवर्नमेंट थी, पॉपुलर गवर्नमेंट जिसको पब्लिक सपोर्ट था, इस गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट था, लेकिन अब ये खुद भी अनडेमोक्रेटिक हो गई है, ये अब खुद ही डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं कर रही, ये सारे रूल्स को तोड़ रही है, ठीक है? चलो। Popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for the normal political activity, including political opposition in the period before elections. This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. Rights of the citizens. They should be free to think, to have opinions, to express in public, to form associations, to protest and take other political actions. Every should be. ये डेमोक्रेसी का कुछ रूल है, क्या रूल है? कि दे शुड बी फ्री टू थिंक, माने सिटीजन को कुछ बेसिक राइट होने चाहिए। बेसिक राइट क्या होता है? सोचने के लिए आजाद होने चाहिए, उनके पास ओपिनियन होने चाहिए, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है? वो अपनी एसोसिएशन बना सके, अपनी पार्टी बना सके, प्रोटेस्ट कर सके, ठीक है? पॉलिटिकल एक्शंस ले सके, ये सब होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई लॉ, सब कानून में सब बराबर होना चाहिए, क्या राजा क्या प्रजा सब कोई बराबर होना चाहिए।
their right must be Please. protected by an independent, और सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए वहां पे जो उनका राइट्स को रोक सके, ठीक है. Judiciary which orders are obeyed by everyone. We shall read more about this in chapter 5. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic government cannot do whatever it likes. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो. Yes, आपको sir. वही करना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. समझ में आया? आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते. नहीं जा ठीक है? सकते. It has to respect some basic rule. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो पहले चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए. Every office bearer has certain rights and responsibility assigned by the constitution and the law. Each of this accountable not only to the people but also to other independent officials. हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे. But this aspect give us, इसमें भी कितना बाकी है इस चैप्टर में, ये कितना बड़ा चैप्टर है? अच्छा, why democracy is there? Okay, ठीक है. 6 पेजेस और हैं सर इसके. इसके 6 पेजेस और हैं. चलो कोई बात नहीं. सेकंड पार्ट, चलो ओके, यहाँ से रीड करो. कहाँ से? But these aspects, both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. Democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights. माने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ही सेट करती है उसको, लॉ और रूल्स सिटीजन लोग को ही रूल कर मैंने सेट करते हैं और उसी के हिसाब से चलना चाहिए. समरी डेफिनेशन, तो अब हम लोग का डेफिनेशन को समराइज करेंगे तो हम लोग को ये 4 मेजर पॉइंट मिलेंगे. रीड करो जल्दी से. Summary definition. Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. So, a series of examples, we worked out 4 features of democracy as हमने शुरू में डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखा था, ठीक है. तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमो मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल, ठीक है. लेकिन रूल ऑफ द पीपल तो है, लेकिन उसके अंदर और भी 4-5 मेजर चीज है जो हमको समझनी पड़ेंगी, तभी जाके रूल ऑफ द पीपल माना जाएगा. सबसे पहला, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन. पहला ये क्या है कि जिनको पब्लिक चूज करेगी वही सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. माने लोगों के पास इतना चांस होना चाहिए कि वो जो जीती हुई पार्टी है उसको हरा दे, ठीक है. माने जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है वो चेंज करा सके, इतना लोगों के अंदर पावर होना चाहिए. द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. हर आदमी के पास रूल माने चॉइस होना चाहिए कि वो किसको वोट देना चाहता है, ठीक है, इक्वल बेसिस में, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा. The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules to the constitution and citizen right. तो जो भी ये रूल्स होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में होंगे और सिटीजन्स के राइट के ऊपर में ये रूल्स बनेंगे. समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. Okay, ये क्या है? Read 5 examples of working denial of match each of these relevant. चलो अब हम लोग को इसको नेक्स्ट क्लास में ये करना है व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है. तो इसको इस मीटिंग में नहीं करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में जो है हम लोग का जो नेक्स्ट मीटिंग आएगा उसमें हम लोग व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है. हमने देखा पहले बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि रूल ऑफ द पीपल, लेकिन रूल ऑफ द पीपल माने लोगों का रूल, कब रूल माना जाएगा, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हमने की. तो इंडिया में भी हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग बोलते तो हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप सही से वोट नहीं दे रहे हो, अगर आपको वोट देने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर आपको वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, डर बनाया जा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है. आप अपने लीडर लोग से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हमने डेमोक्रेसी के चैप्टर में पढ़ा है और हम इन भारत के बच्चे हैं, हम अनपढ़ गंवार नहीं है, हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि अगर हम फ्रीली वोट नहीं दे सकते, जिसको हम चाहते हैं अगर हम उसको वोट नहीं दे सकते, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है. समझ में आ रहा बात को? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी. रिज्वाइन करना
Wait.